Hello friends, this is Piyush Gupta from an EPSILON Institute of Mathematics. Today our topic is on complex analysis, that is CSIR net fast revision notes. Here we are discussing about definition, examples, remarks, points to remember. So let us start with the points, right? First of all, here there is a point that argument Z is not defined. Remember that this is a general argument. General argument is not defined. That is small a argument Z is not defined. Right. Second point is Chardal distance. Distance between two complex numbers is the Chardal distance, denoted by xi of z1 z2 is equals to d of z1 z2, which is less than or equals to d. D is the diameter of the sphere. Right. So let us come to the third point, that is antipodal points. 2 points z1 and z2 are antipodal if and only if z1 z2 bar is equals to -1. Right. Now multivalued function. Multivalued function is defined as if mod of z1 is equals to mod of z2 but f of z1 is not equals to f of z2. That means positionally equal and argument of z1 minus argument of z2 is equals to 2n pi, where n belongs to integers. Now monovalent function. Monovalent function is defined as if f is 1 1. For example, e of z1 is equals to e of z2, which implies that z1 minus z2 is equals to 2n pi iota, where n belongs to integers. Now let us see that the rth roots of unity are 1 alpha, alpha square up to alpha to the power n minus 1, where alpha is equals to e to the power 2 pi iota by n, and sum of the roots are equals to 0 and product of the roots is equals to -1 to the power n minus 1. Right. Now seventh point. Seventh point denotes that it is the equation of the straight line and equation of the circle with center a minus a and radius under root of mod a minus lambda square, then ellipse, then hyperbola, and after that circle and a straight line. First of all, see that the equation of the straight line is denoted by a bar z plus a z bar is equals to lambda. Then circle denotes that z bar plus a z bar plus a bar z plus lambda is equals to 0. Then come to the ellipse. Ellipse is denoted as mod of z minus z1 plus z minus z2 is equals to k, where k is greater than mod of z1 minus z2. Right. And the hyperbola denotes that mod of z minus z1 minus mod of z minus z2 is equals to k, where k is less than minus of mod z1 minus z2. Right. And the last one is mod of z1 minus z2 divided by z minus z2 is equals to k, is a circle when k not equals to 1 and straight line if k is equals to 1. Now polar form of the CR equation. Polar form of the CR equation is UR is equals to 1 upon R V theta and U theta is equals to minus of R VR. Now let us come to the ninth point, which denotes that when we find to the points of x and y when a and b are given. Right. So x is equals to plus minus under root of a plus under root of a square plus b square divided by 2, and y is equals to y is equals to b upon 2x, which is equals to plus minus under root of minus a plus under root of a square plus b square by 2 into sine of b, where sine of b is 1 when b greater than or equals to 0 and minus 1 when b is less than equals to 0. Now uniform limit of continuous function is continuous. Right. So let us come to the MN test. MN test
denotes that if fk is continuous in D domain and mod of fkz is less than or equals to mk and summation of mk converges, then we say that summation of fkz converges to a function f which is continuous in D. राइट, हमारे पास एक फंक्शन समेशन जो एफ के जेड होगा वो कन्वर्ज कर जाएगा एफ फंक्शन पर जो कि कॉन्टिन्यूस होगा डी के अंदर. राइट, सो अगर हम सपोज यू एक्स वाई हैज़ अ पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स एंड वी वाई यू वाई दैट वैनिश एट एवरी पॉइंट ऑफ डी. मीन्स अगर यू एक्स और यू वाई हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है और वो वैनिश हो जाते हैं हर एक पॉइंट पर डोमेन के, तो u जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा उस डोमेन में. नाउ f इज एनालिटिक एट z इफ f इज डिफरेंशिएबल इन अ नेबरहुड ऑफ z. अगर f जो है वो एनालिटिक है z के अंदर तो f जो होगा वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा नेबरहुड ऑफ z में, और g डैश z नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f डैश g z नॉट. राइट, नाउ एवरी कन्वर्जेंट पावर सीरीज रिप्रेजेंट एन एंटायर फंक्शन. हर एक कन्वर्जेंट पावर सीरीज जो होती है वो एंटायर फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है. नाउ लेट अस कम टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज बेस्ड ऑन सिंगुलैरिटीज. राइट, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज, दैट इज आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट व्हाट इज आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी. हियर वी सी दैट अगर हमारे पास इस पूरे नेबरहुड के अंदर सिर्फ z पॉइंट पर सिंगुलैरिटी मिल जाए और बाकी सब पॉइंट्स पर एनालिटिक हो. राइट, सो हियर इट इज रिटन दैट एनालिटिक इन अ नेबरहुड ऑफ z नॉट एक्सेप्ट z नॉट. z नॉट पॉइंट को छोड़कर उसके पूरे नेबरहुड में अगर एनालिटिक हो जाए फंक्शन तो वो होती है हमारे पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी. नाउ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी इज ऑल्सो डिफाइंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, पोल सिंगुलैरिटी एंड एसेंशियल सिंगुलैरिटी. अब रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या होती है? इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g एट z नॉट एंड सच दैट एफ जेड इज इक्वल्स टू जी जेड फॉर ऑल z इन अ नेबरहुड ऑफ z नॉट, देन रिमूवेबल सिंगुलैरिटी एट z नॉट. मीन्स हमारे पास अगर कोई फंक्शन मिल जाए g जो एनालिटिक हो z नॉट पर और एफ जेड जी जेड के इक्वल आ जाए इन अ नेबरहुड ऑफ z नॉट, हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी आ जाती है z नॉट पॉइंट पर. देन पोल सिंगुलैरिटी. पोल में क्या होता है कि इफ फॉर z नॉट इक्वल्स टू z नॉट एफ जेड इज इक्वल्स टू ए जेड अपॉन बी जेड एंड a and b आर एनालिटिक एट z नॉट एंड माइनस ऑफ a z नॉट इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b z नॉट इज इक्वल्स टू 0. मीन्स अगर हमारे पास कोई फंक्शन है a जेड अपॉन बी जेड की फॉर्म में और a माइनस ऑफ ए जेड जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है और b ऑफ z नॉट पॉइंट पर वो 0 बन जाता है, मीन्स डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, तो हमारे पास f के पास पोल हो जाएगा एट पॉइंट z नॉट. राइट, अब एसेंशियल सिंगुलैरिटी. एसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या होती है? अगर हमारे पास वो नाइदर रिमूवेबल हो ना ही पोल हो, देन वो हो जाती है हमारे पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी. नाउ लेट अस कम टू द रीमान प्रिंसिपल ऑफ द रिमूवेबल सिंगुलैरिटी. अब हम रीमान प्रिंसिपल से देखेंगे कि रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या होती है. अगर f हैज़ अ एनालिटिक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एट z नॉट, अगर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है z नॉट पॉइंट पर, एंड इफ लिमिट z टेंड्स टू z नॉट z माइनस z नॉट एफ जेड इज इक्वल्स टू 0. अगर z माइनस z नॉट से मल्टीप्लाई करने पर फंक्शन को 0 मिल जाता है तो वो हमारी हो जाती है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी. फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, इफ f इज बाउंडेड इन अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी. अगर f जो है एक डिलीटेड नेबरहुड में आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी दे रहा है और वो बाउंडेड है तो वो हो जाती है हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी. उसके बाद है अगर f एनालिटिक है डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z नॉट में एंड इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव k सच दैट, एक पॉजिटिव k मिलेगा हमें, सच दैट लिमिट ऑफ z माइनस z नॉट की पावर k एफ जेड इज नॉट इक्वल्स टू 0. मीन्स z माइनस z नॉट की पावर k मल्टीप्लाई करने पर एफ जेड नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, लेकिन k की पावर k z माइनस z नॉट की पावर k प्लस 1 मल्टीप्लाई करने पर 0 बन रहा है,
तो वो आ जाता है हमारे पास पूल ऑफ ऑर्डर के। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास लॉरेंट एक्सपेंशन। ये बेसिकली हमें एसेंशियल सिंगुलरिटी फाइंड करने के लिए होती है। लॉरेंट एक्सपेंशन में क्या होता है, ये हमारी एक्सपेंशन होती है समेशन ऑफ के माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक ए के इंटू जेड माइनस जेड नॉट की पावर के। ठीक है, इधर थोड़ा मिसप्रिंट है, आप सही कर लेना। ये इंटरवल दे रखा है हमारे पास जेड माइनस जेड नॉट का, ये R1 से लेकर R2 तक लाई करता है। हेयर ए के इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर के प्लस 1, जेड माइनस जेड नॉट है। ठीक है, डी जेड। देन माइनस इन्फिनिटी टू -1 जो होता है वो एनालिटिक पार्ट होता है, और 0 टू इन्फिनिटी प्रिंसिपल पार्ट होता है। ये बेसिकली जिसको नोट्स रिवाइज करने पेपर से 1-2 दिन पहले, ये बेसिकली उनके लिए है, राइट। सो प्लीज़ डोंट टेक इट सीरियसली। मैं इसको बाद में कंप्यूटराइज नोट्स बना के इसको प्रेजेंट करूँगा, राइट। सो एट प्रेजेंट इसी से काम चलाना पड़ेगा। नाउ इफ एफ हैज़ एन एसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड नॉट and n must have a infinitely many non-zero terms in the principal part, और उसके प्रिंसिपल पार्ट में मीन्स 0 टू इन्फिनिटी वाले पार्ट में इन्फिनेटली मैनी नॉन जीरो टर्म्स हो, तो वो हो जाती है हमारे पास एसेंशियल सिंगुलरिटी। देन 18th पॉइंट क्या कहता है हमारे पास, इफ एफ एन इज अ सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एफ एन जो है सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एफ एन जो है एफ पर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी जेड इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन डी जेड। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास क्लोज्ड कर्व थ्योरम। क्लोज्ड कर्व थ्योरम क्या कहती है, इंटीग्रल ऑफ अ एनालिटिक फंक्शन अलोंग क्लोज्ड कर्व इज 0। अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी क्लोज्ड कर्व के अंदर, तो उसका एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए, लेकिन वो तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 आ जाएगा। देन हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन क्या होते हैं, जो इन्फिनेटली मैनी टाइम्स डिफरेंशिएबल हो, राइट। अब प्रॉपर्टीज क्या है इसकी कि इफ एफ इज एंटायर एंड जी जेड इज इक्वल्स टू एफ जेड माइनस एफ ए डिवाइड बाई जेड माइनस ए। ये कहाँ पर है, जेड नॉट इक्वल्स टू ए पर, और एफ डैश ए कहाँ पर है, जेड इज इक्वल्स टू ए पर। देन इंटीग्रल थ्योरम एंड क्लोज बाय इंटीग्रल थ्योरम एंड क्लोज थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं जी एंड एफ को। देन इंटीग्रेशन ऑफ जी जेड डी जेड जो होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा, वेयर गामा जो है वो बाउंड्री ऑफ अ रेक्टेंगल है, राइट। अब है हमारे पास कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, बेसिकली यूज्ड होता है इंटीग्रेशन निकालने के लिए। क्या है ये कि एफ ए इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए की पावर जेड माइनस ए डी जेड, राइट। इफ ए इज कंटेन्ड इन द सर्कल सी आई, अगर ए जो है हमारे उस सर्कल के अंदर कंटेंट हो जाता है, तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, वो होता है 2 पाई आयोटा के इक्वल, वेयर अल्फा जो है इधर सेंटर के इक्वल है, और गामा जो रो जो है वो रेडियस के इक्वल है, राइट। अब है हमारे पास टेलर एक्सपेंशन ऑफ ए एंटायर फंक्शन। वो क्या होता है, एफ जेड इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ के इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एफ के 0 डिवाइड बाई के फैक्टोरियल इंटू जेड के फॉर ऑल जेड। उसके बाद आती है हमारे पास लियोविले थ्योरम। लियोविले थ्योरम क्या कहती है, बाउंडेड एंटायर फंक्शन इज अ कांस्टेंट। एक बाउंडेड और एंटायर फंक्शन जो होगा वो कांस्टेंट होगा। उसके बाद है एक्सटेंडेड लियोविले थ्योरम। ये क्या कहती है हमारे पास, इफ एफ इज एंटायर एंड इफ फॉर सम इंटीजर के ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0, then there exists a positive constant a and b such that mod of fz is less than or equals to a plus b mod z की पावर k,
अगर इस फॉर्म में आ जाता है हमारे पास, देन f जो होगा वो पॉलिनोमियल होगा डिग्री एटमोस्ट k का। ठीक है, इसके अंदर एक तो f एंटायर होना चाहिए और हमारे पास कांस्टेंट k होना चाहिए a और b में कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो हमारे पास f जो होता है वो फंक्शन मिल जाता है, पॉलिनोमियल मिल जाता है डिग्री एटमोस्ट k का। इसके बाद है हमारे पास देयर आर many entire functions such as e to the power z minus 1 which have infinitely many zeros and whose derivative are never zero। डेरिवेटिव कभी जीरो नहीं होगा इसका। ऐसे हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। इसके बाद है हमारे पास convex hull of a set S of complex number is the smallest convex set containing S। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम। मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम ये कहती है अ नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन इन डी डज नॉट हैव एनी इंटीरियर मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, ये एक तो नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये उसके पास कोई भी इंटीरियर मैक्सिमम पॉइंट नहीं होगा। ध्यान रखना, ये नॉन कांस्टेंट और नॉन जीरो एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए, उसके पास नहीं होगा अंदर मैक्सिमम पॉइंट। अब है मिनिमम मॉडुलस थ्योरम। मिनिमम मॉडुलस थ्योरम क्या कहती है, अगर f नॉन जीरो और नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है देन नो पॉइंट z बिलोंग्स टू d कैन बी अ रिलेटिव मिनिमा। कोई भी उसके अंदर रिलेटिव पॉइंट नहीं मिलेगा, हमें रिलेटिव मिनिमा पॉइंट नहीं मिलेगा जब तक fz जो वो जीरो ना बन जाए। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे पास सपोज f इज अ नॉन कांस्टेंट एंड एनालिटिक फंक्शन ऑन अ क्लोज डिस्क d। अगर f जो है कोई भी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है और एज्यूम कर रहे हैं हम इट्स मैक्सिमम मॉडुलस एट द बाउंड्री पॉइंट पर है, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो नॉट इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास द सेट ऑफ इंटीरियर क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन except for those which are zero is identical with the sets of its saddle point। इंटीरियर क्रिटिकल पॉइंट्स जो होते हैं एनालिटिक फंक्शन के वो सैडल पॉइंट्स होते हैं। इज आइडेंटिकल विद द सेट्स ऑफ सैडल पॉइंट। z नॉट इज द सैडल पॉइंट ऑफ एनालिटिक फंक्शन इफ एंड ओनली इफ f z नॉट इज इक्वल्स टू जीरो एंड डेरिवेटिव पर नॉट इक्वल्स टू जीरो आ जाए। उसके बाद फाइनाइट फील्ड कैन नेवर बी ए ऑर्डर्ड फील्ड। फाइनाइट फील्ड कभी भी ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता। Q√2 इज एन ऑर्डर फील्ड। Q√2 जो होगा वो ऑर्डर्ड फील्ड होगा। इसके बाद आता है हमारे पास जनरल आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z प्लस 2n पाई। इसलिए जो फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास कि जनरल आर्ग्यूमेंट z जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि इधर हमारे पास n की वैल्यू कोई भी फाइनाइट नहीं है, अननोन है इधर। इसके बाद आता है हमारे पास नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। नेबरहुड क्या कहता है, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल i सच दैट a बिलोंग्स टू i इज अ सबसेट ऑफ a। उसके बाद है हमारे पास लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। देन उसके बाद है बोल्जानो वierstrass थ्योरम। वो क्या कहती है हमारे पास कि बाउंडेड होना चाहिए फंक्शन और इन्फिनिट सेट होना चाहिए, तो वो इम्प्लाई करता है उसके पास एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट होगा। उसके बाद आता है हमारे पास ओपन सेट। ओपन सेट क्या कहता है कि इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अगर हर एक पॉइंट उसका नेबरहुड में मिल जाए देन वो होता है ओपन सेट। नॉन एम्प्टी ओपन सेट मस्ट बी अनकाउंटेबल। ये अनकाउंटेबल होता है। आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है और फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है। ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। उसके बाद आता है हमारे पास क्लोज्ड सेट। क्लोज्ड सेट मीन्स अगर लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर कंटेन हो जाए तो वो होता है हमारे पास क्लोज्ड सेट। इसके अंदर आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट मे नॉट बी क्लोज्ड होता है, लेकिन फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट क्लोज्ड होगा और आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट क्लोज्ड होगा। सम ऑफ टू क्लोज्ड सेट मे नॉट बी क्लोज्ड, ये लास्ट क्लास में ही पढ़ा था हमने। इसके बाद आइसोलेटेड पॉइंट,
जो हर किसी से आइसोलेट करते रहे। देन एडरेंट पॉइंट, नेबरहुड में एटलीस्ट 1 पॉइंट होगा, राइट। फॉर एग्जांपल 1 2 3 आर द एडरेंट पॉइंट। लिमिट पॉइंट जो होते हैं वो एडरेंट पॉइंट को इम्प्लाई करते हैं, लेकिन एडरेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट को इम्प्लाई नहीं करते। उसके बाद ये है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का फॉर्मूला। इसके अंदर क्या है, 1/r इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी mod of an प्लस 1/an, विच, और ये इसको हम लिमिट सुप्रीम ऑफ mod ऑफ an की पावर 1/n से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज नॉट कॉन्टिन्यूस ऑन c माइनस इन्फिनिटी टू 0 और c माइनस इन्फिनिटी टू 0 क्लोज इंटरवल। उसके बाद आते हैं हमारे पास लिमिट, अगर हम निकालेंगे z टेंड्स टू z0 पर अंडर रूट ऑफ z nth रूट ऑफ z डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट डिफाइंड ऑन नेगेटिव वैल्यूज, ये नेगेटिव वैल्यूज पर डिफाइंड नहीं होगा। लिमिट ऑफ z टेंड्स टू 0 nth रूट ऑफ z एग्जिस्ट, देयरफॉर कॉन्टिन्यूस होगा ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं फाइंड जनरल आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के ऊपर। देन e की पावर z मैप करता है वर्टिकल लाइन टू अ सर्कल एंड हॉरिजॉन्टल टू अ रे। वर्टिकल लाइन जो होगी हमारे पास वो सर्कल को डिनोट करती है और हॉरिजॉन्टल लाइन रे को डिनोट करेगी, मैप करती है, सॉरी। उसके बाद e की पावर z अगर हमारे पास c से c स्टार तक डिफाइंड है तो वो ऑन टू होता है, ठीक है। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जो होंगे वो आउटसाइड द सर्कल पर जाएंगे और जो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट होंगे वो इनसाइड द सर्कल पर जाएंगे। ये ग्राफ से हमने दिखा दिया इसको। उसके बाद है हमारे पास log z, प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी वो कॉन्टिन्यूस होगी c माइनस इन्फिनिटी टू 0 के बीच में, और log z इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। उसके बाद log z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू होता है log z1 प्लस log z2 के। इसके बाद है a complex number that satisfied a non-zero polynomial over zx, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो सेटिस्फाई करता है zx पर। उसके बाद है fz इज डिफरेंशिएबल इफ, डिफरेंशिएबल कब होगा, इफ डेल एफ अपॉन डेल जेड बार 0 के इक्वल आ जाए, इफ एंड ओनली इफ ux vy के इक्वल आ जाए एंड vx माइनस uy के इक्वल आ जाए। ये CR इक्वेशन होती हैं, वो सेटिस्फाई करती हैं एनालिटिक फंक्शन को। इसके बाद एनालिटिक फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल होता है अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट्स पर बट नॉट कन्वर्सली। फॉर एग्जांपल fz इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, ये इनफाइनाइट अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल है लेकिन एनालिटिक नहीं है। इसके बाद है हमारे पास इफ f इज डिफरेंशिएबल एट काउंटेबल पॉइंट्स देन f इज नॉट एनालिटिक, इसका ये नॉट p नॉट q आ गया। अगर a एनालिटिक है और प्लस हम कर रहे हैं नॉन एनालिटिक फंक्शन तो वो आ जाएगा हमारे पास नॉन एनालिटिक। नॉन एनालिटिक प्लस नॉन एनालिटिक, एनालिटिक भी आ सकता है और नॉन एनालिटिक भी आ सकता है। a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, उसका प्रोडक्ट हम करेंगे नॉन एनालिटिक के साथ तो वो नॉन एनालिटिक आएगा। देन एनालिटिक इम्प्लाइज करता है डिफरेंशिएबिलिटी को और डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज करती है कॉन्टिन्यूटी को, लेकिन नॉट कन्वर्सली। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम fz इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर डिफरेंशिएबल है लेकिन एनालिटिक नहीं है। डिफरेंशिएबल एट z नॉट इज इक्वल्स टू 0 ओनली, नेबरहुड में डिफरेंशिएबल नहीं है ये, इसलिए ये एनालिटिक नहीं हो पाएगा। इसके बाद है हमारे पास CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, ये हमने स्टार्टिंग में देख ली थी। उसके बाद f डैश z इज इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस आयोटा z इंटू ur प्लस आयोटा vr, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f डैश z इज इक्वल्स टू माइनस e टू दी पावर आयोटा थीटा डिवाइड बाई r मल्टीप्लाई बाई u थीटा प्लस आयोटा v थीटा।
ठीक है। उसके बाद है अगर लेट एफ फ्रॉम डी हमारा सबसेट, डी डोमेन है सबसेट ऑफ सी का, बी एनालिटिक फंक्शन बन जाए डोमेन एफ के अंदर, तो एफ कांस्टेंट कब कब होगा, अगर यू कांस्टेंट हो जाए, या फिर वी कांस्टेंट हो जाए, या फिर एफ रियल वैल्यूड फंक्शन हो, या फिर एफ प्योरली इमेजिनरी हो, तो हमारे पास जो होगा एफ कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन क्या कहता है कि एफ डी ए सबसेट डोमेन इज अ सबसेट ऑफ आर स्क्वायर टू आर, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, सच दैट डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये लैप्लास इक्वेशन होती है, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो हार्मोनिक फंक्शन बन जाता है। उसके बाद आती है हमारे पास यंग्स थ्योरम। यंग्स थ्योरम क्या कहती है कि एफ अगर ये सिमिलर होगा सच दैट एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स कॉन्टिन्यूस हो जाए नेबरहुड ऑफ ए बी में, देन एफ एक्स वाई जो होगा वो एफ वाई एक्स के इक्वल होगा इस डोमेन के अंदर। उसके बाद है हमारे पास इफ एफ इज एनालिटिक एट जेड नॉट, देन एफ एन जेड नॉट इज एनालिटिक एट जेड नॉट। अगर एफ एनालिटिक है जेड नॉट पर तो उसका nth डेरिवेटिव भी होगा, वो एनालिटिक होगा जेड नॉट पॉइंट पर। उसके बाद हमारे पास एफ एक फंक्शन है, डी डोमेन है सबसेट सी का टू सी तक, बी एनालिटिक हो जाए हमारे पास डी डोमेन के अंदर, देन यू एंड वी आर हार्मोनिक ऑन डी, यू और वी जो होंगे वो हार्मोनिक हो जाएंगे डोमेन के अंदर। उसके बाद आता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या कहता है कि इफ एफ जो होगा वो यू प्लस आयोटा वी होगा इज एनालिटिक इन डोमेन डी, देन वी इज सेड टू बी द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू एंड वाइस वर्सा, राइट। इफ u is harmonic conjugate of v and vice versa, then u and v are constant। अगर u और v जो हो हार्मोनिक कॉन्जुगेट बन जाए और वाइस वर्सा v इज कॉन्जुगेट हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u v बन जाए, तो u एंड v जो होंगे वो कांस्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद होता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैन नॉट बी यूनिक। हार्मोनिक कॉन्जुगेट कभी भी यूनिक नहीं होते अप टू कांस्टेंट, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये बेसिकली हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करी है ये वीडियो। सो आज हमारी फर्स्ट सेक्शन जो हुआ है वो कंप्लीट हो गया है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।